Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to learn physics class 12th CLASS class 12th, or you can say inter second year. So we have already done our chapter number 7, that is moving charges and magnetism. So in our today's session or today's part, we will going to start one of our new chapter. The sequence of the chapter is chapter number 8 and the name of the chapter is nothing but magnetism and matter. So all the student and viewers, what is magnetism and what is matter? First we need to put a glimpse on that. As you can see, magnetism is nothing but it is a like physical concept, PHYSICAL, physical concept, and this can be like characterized and governed by magnetic field. So where there is a magnetic field, there will be a magnetism occurs, we can say. Okay, that is magnetic field. Coming to the part matter. Matter is nothing but something. Okay, something or anything we can write rather than something. Yeah, it is a correct way is ANY, anything. Occupies, CCUPIES, occupies space, SPAC, space, and having mass. And having mass is nothing but matter. And for matter, in our 9th class we may come across that matter has 3 types, that is solid, liquid, and SOLID, solid, LIQUID, liquid, and gases. These 3 are the major, that is parts or major things related to matter. So let us begin our chapter number 8, part number 1. Magnetism is a physical concept which is characterized and governed by a magnetic field. The bar magnet point in north-south direction when it is freely suspended. So here the starting concept given just now I explained, that is magnetism. That's only it's saying that magnetism is nothing but it is a physical concept which is characterized and governed by a magnetic field. And how we can get the magnetic field? From any bar magnet which is pointed north-south direction and when they are freely suspended. Here not compulsory to suspend, here you can keep north-south magnet on the plane surface also, there will be a existence of magnetic field, or from that magnetism occurs. Now देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज हम हमारे फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं का, या फिर इंटर सेकेंड ईयर भी बोल सकते हैं आप। हम आज हमारा 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें हमको सबसे पहले मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए ताकि हम पूरा आगे लेसन कर सके। तो देखिए मैग्नेटिज्म क्या है, हमारे पास जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहती वहाँ पे एक यानी कि प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर एक फिजिकल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, उसको हम मैग्नेटिज्म या फिजिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहती वो है आपको मैग्नेटिज्म। मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास, किसी के पास भी जगह है यानी जगह को यानी कि घेर रहा है वो, या फिर एक फील्ड को कवर कर रहा है और उसके पास मास है तो वो मैटर कंसिडर होगा। मैटर में मेनली 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ना हम थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। BAR, बार, MAGNET। तो बार मैग्नेट होता क्या है आखिर? आप लोग बार मैग्नेट फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, 5th क्लास साइंस, 6th क्लास साइंस, 7th क्लास साइंस, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो बार मैग्नेट होता क्या है, वो थोड़ा सा पॉइंट्स है, वो मैं पहले आपको रीड करके समझा देता हूँ, बाद में स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप लिख के लिख सकते हैं। लिसन केयरफुली। द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सबसे पहले बार मैग्नेट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो परफेक्ट मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट यानी कि मैन्युफैक्चर होगा डिफरेंट
फैक्ट्रीज में और आपको ला के दे देंगे, जो कुछ इस तरीके से उसका शेप रहता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहता है। ये पहला एक कंडीशन है। सेकंड, जो मैग्नेट होता है अलग अलग, यानी कि जब भी हम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसी पे अप्लाई करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम, जो करने पे आपको मालूम होगा कि वो बार मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने यानी कि कॉइल्स से रिलेटेड किया था। ये जो कॉइल्स को अगर हम गोल घुमा के रख देंगे, फिर इसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि पास करेंगे, तो ये जो कॉइल है कंप्लीट, जो सोलेनॉइड कहते हैं एक्चुअली इसको, ये सोलेनॉइड यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसा एक्ट करेगा। तो ये टाइप के भी हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताया जा रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट से यानी कि पैदा होता, इसके अंदर एक यानी कि क्वालिटी रहती अट्रैक्शन और रिपल्शन की, वो है फर्स्ट पॉइंट बार मैग्नेट। सेकंड, इफ अ बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल M is placed in a uniform magnetic field, then the force is equals to 0, torque is equals to M into B and the potential energy U is equals to minus MB। अगर ये तो हो गया दो टाइप के मैग्नेट्स, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि एक हल्की सी वीक मैग्नेटिक फील्ड देगा, एक तो परफेक्ट मैग्नेट होगा। अगर हम परफेक्ट मैग्नेट को लेके जाके यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो देखेंगे हम, तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है यूजुअली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कि इफ़ अ बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट M इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, देन F उसका 0 हो जाएगा और उसका जो टॉर्क होता है टाउ इज नथिंग बट M इंटू B। यहाँ पे M क्या है, B क्या है? M आपको हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। मैं लिखा देता हूँ, डाइपोल मोमेंट क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, डाइपोल मूवमेंट, और हमारे पास B हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक FIELD फील्ड। नेक्स्ट, एंड व्हाट अबाउट द एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट कैपिटल U इज इक्वल्स टू माइनस MB। दिस इज द three small formulas related to the bar magnet when it is kept in the uniform magnetic field. The intensity of magnetic field is expressed in terms of magnetic field strength। जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो एक्सप्रेस होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कितनी कम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन बाई, अभी मैं सोलेनॉइड की बात कर रहा था, वही आपको बताया जा रहा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में वो यूजुअली गिवन होगा स्मॉल n इंटू 2 पाई इंटू लाइक I इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब ये होता, ये पूरे चीज़ें है क्या, नॉट आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। आर स्क्वायर बोल तो डिस्टेंस हो जाएगा, ए स्क्वायर बोल तो यूजुअली एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है, m दो है, यहाँ पे m आपके पास, यहाँ पे m जो था डाइपोल मूवमेंट था, इजंट इट, बट इधर m आपको रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। तो m से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, n से आपको नंबर ऑफ टन्स, यानी जो वायर से आपने कितने टन्स फॉर्म किए हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे नॉट पाई 2L होगा आई थिंक, जी हाँ L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दी वायर। जो वायर से आप यानी कि सोलेनॉइड फॉर्म कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी। उसके बाद I आपको पता है करंट, पाई की एक अपनी कांस्टेंट। ओके, आई विल गोइंग टू राइट दैट्स बेटर एंड बेस्ट। हियर M इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट, whereas L is nothing but LENGTH, length of wire. Now here I is nothing but CURRENT, current. A is area, AREA, area. Pi has this constant, TANT, constant, and its value is usually 22/7. So the thing, bar magnet, we have few points with us, and this points is very important. You need to just put a heading related to the bar magnet, a short note on bar magnet, and you can write this complete points that I explain. I am placing you on your screen. Hope you have copied a few points related to the bar magnet. Now we will going to come across one more topic with us, like magnetism and Gauss law, GAUSS, Gauss LAW law. We have already learned one more Gauss law related to the electricity, I think. Okay,
Now in our magnetism also we have one Gauss law. It is very important and very short and easy definition with us. Here Gauss law of magnetism states that the net magnetic flux through any closed surface is zero. That means it is saying that magnetic flux, 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 the magnetic flux through 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 any CLOSED closed surface 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 is zero. So what is magnetic flux then? Magnetic flux is nothing but, okay, for magnetic flux I am going to give you one example. If we have one bar magnet with us, okay, this bar magnet producing our magnetic like lines with us, this is a magnetic line we have with us from bar magnet, isn't it? Now I am going to take a small part here, okay, this part, okay, and from this part some magnetic field passes through. So here magnetic flux is nothing but the number of line passing through a particular region is nothing but magnetic flux we can see. And for magnetic flux you have already learned the definition in your 10th class, electromagnetism chapter number 10. जैसा कि देखिए अभी आप जो मैंने बार मैग्नेट के बारे में स्क्रीन पे लगाया था, उम्मीद करता हूँ वो आपने कॉपी कर लिया होगा. अभी एक टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ. ये बहुत छोटी टॉपिक है और बहुत आसान भी है. मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ है. एक गॉस लॉ था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में भी, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपने पढ़ा होगा. मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या कहता? मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो. यानी कौन से भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि है, ओके, या फिर जा रहा है, तो वो उसका जो ज़ीरो होता है बल्कि गॉस लॉ बता रहे हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, उसका हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे, उसके अंदर से जो लाइंस जा रहे हैं, जी हाँ, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके आप 10th क्लास के आपके चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारा है, आप वहाँ पे जाके एक मरतबा पढ़ सकते हैं नॉलेज के हिसाब से. आप बोलेंगे सर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में हम ना 10th क्लास की रीडर पढ़ो, राइट? आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो टू 10th क्लास, बट आई एम जस्ट suggesting and advising you to put a glimpse something related to the magnetic flux from 10th class textbook, because if you learn some basic thing means you will be like easily understand higher level things. Now our next topic is nothing but magnetism, okay, and earth, the earth and magnetism. So what is it means, the earth and magnetism? The angle between true geographical north and the north is known as magnetic declination. The angle of the deep is the angle made by the needle when with the horizontal, when the magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis such that it can swing in a plane of magnetic meridians. सो देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बोला है वो ये बोल रहा चाह रहा कि एक एंगल रहता, ट्रू एंगल रहता नॉर्थ और नॉर्थ के दरमियान. आपको तो पता है कि हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर रहेगा, इसके अंदर लैटिट्यूड लैंगिट्यूड बहुत सारे चीज़ें होते हैं. तो जो एंगल रहता ट्रू जोग्राफिकल नॉर्थ एंड द नॉर्थ के बीच में, यानी नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है, यहाँ से नॉर्थ होता, फिर उसके बाद बैकली फिर साउथ शुरू होता, नॉर्थ और साउथ एक साथ. नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन रहता है, यानी कि वहाँ पे मैग्नेट का डिक्लाइन होता है या फिर मैग्नेट वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके से. तो जो एंगल मेड होता नीडल से जब भी हम हॉरिजॉन्टली रखते तो वो बैलेंस होती है एक परफेक्ट और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. और आपको पता होगा जो डायरेक्शन मालूम करते हैं, एक छोटा सा वॉच डायल के जैसा, एक क्लॉक के जैसा, एक यानी कि आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से इतना वो रहता, वो उससे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मालूम करते, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता मैग्नेट का. नाउ आई एम प्लेसिंग मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, द अर्थ मैग्नेटिज्म
छोटे छोटे मैटर्स है वो भी आप कॉपी कर लीजिए स्क्रीन पे से देखकर। Hope you have copied the earth, magnetism and Gauss law. Now our next topic is nothing but magnetic properties of material. Magnetic properties, okay, properties of material. That means what materials exist magnetic properties and what materials does not exist magnetic properties. Now the answer is the substance which tend to move from strong to weaker part to the external magnetic field are known as diamagnetic substance. Okay, first we have one substance named as diamagnetic substance, substance substance. Now the substance एक कौन सी भी चीज़ है समझिए जो मूव हो रहा स्ट्रॉन्ग, यानी जो उसकी स्ट्रॉन्गल फील्ड का पार्ट है एक्सटर्नल फील्ड से, कहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड से पास हो रहा, किधर साइड पास हो रहा, द सब्सटेंस विच टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गल यानी स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहा है ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड का, उस टाइप के मैग्नेट को हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायामैग्नेट एक्चुअली कह रहा क्या कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, टेंड करते या फिर मूव हो जाते उनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाते, तो उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते फॉर एग्जांपल जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे पास प्लास्टिक है, वुड है, जो मैग्नेट करीब लेके आने पे कुछ भी अपना एक्शन नहीं शो करते, यानी कि कुछ भी एक्शन ही नहीं आता उन लोगों को, कुछ यानी कि जो कैनॉट बी अट्रैक्ट विथ मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उस टाइप के सब्सटेंस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते। और एक हमारे पास सब्सटेंस रहता पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस SUBSTANCE सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनको क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट वीकली मैग्नेटाइज आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या होता, जो हम कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे पास रहते हैं जो मैग्नेट की फील्ड के पास लेके जाके रखेंगे तो बिल्कुल अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, तो उस टाइप के जो सब्सटेंस है उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और एक हमारे पास रहता है फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आपको आयरन रहेगा या फिर ऑल द मेटल्स यूजुअली। यहाँ पे क्या होता है, द सब्सटेंस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज आर कॉल्ड फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेंगे मैग्नेट को अपनी तरफ या मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे, उस टाइप के सब्सटेंस को हम फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑन विच फेर्रोमैग्नेटिक चेंज टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। कभी क्या होता है कि हमको फेर्रोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म की तरफ कोई मटेरियल्स चले जाता, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर पे TEMPERATURE एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टाइप के टेम्परेचर को हम कहते हैं लाइक CURIE क्यूरी टेम्परेचर। यह आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो आप बोलना द टेम्परेचर ऑन विच फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस changes to paramagnetic substance is called Curie temperature. One more example, इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास आयरन है, आयरन अगर नॉर्मल लेग जाके मैं मैग्नेट की तरफ लेके जाऊँ तो वो परफेक्टली अट्रैक्ट होगा। अगर मैं वही आयरन को पिघलाना शुरू करूँ यानी मेल्ट करना शुरू करूँ तो जो मैग्नेटिज्म होता है स्ट्रांगली अट्रैक्शन का आयरन का, वो कम होते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आयरन है वो लिक्विड में बदल जाता, तो वैसे टाइम पे क्या होता, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा एक्ट करेगा, तो उस टाइप के टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक फ्लैश डाल लेंगे कि मेनली जो परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन क्या होता, यानी कि फ़र्क क्या होता परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर भी रहता है आपको, डिफरेंस बिटवीन लाइक परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें भी आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगी, नीड नॉट टू वरी। तो देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर जो
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। वेरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, फेरोमैग्नेट हो जाएगा अगरचे कि वो लो रेसिस्टिविटी और हाई परमिएबिलिटी पे रख देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू मेक, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम आपको बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमालात होते हैं, लाइक लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक बेल है, टेलीफोन है, डायाफ्रा एक्सेट्रा। तो आपको 2 मार्क्स में और एक सवाल पूछ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आप ना 3-4 यूजेस लिखिए। द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टू मेक लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, डायाफ्रा एक्सेट्रा, इस टाइप का लिख सकते हैं। तो ना अभी मैं आपको 2 टॉपिक्स जो यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। Hope you have saw this matter on your screen. Make sure you need to write and remember these things. One more thing I'd like to say about this chapter, that is magnetism and matter. यहाँ पे देखिए ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे 2+2 इन आवर आईपी। जो इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन है उसमें हमारे पास 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज कंसिडर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर विथ रिगार्ड्स टू 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चंस है, 10 में से 2 क्वेश्चंस तो इसी में कवर हो जा रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यानी पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, ये आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। तो मेरा नाम सैयद राशिद है, आप अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू।